आ रही है आप लोगों को मेरी? We have started with the interview part, fourth module. ये कुछ स्लाइड्स हम लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि कल ये हो चुकी थी कि रिपीटेशन चाहिए है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हम लोग अब देख रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू फर्स्ट आपका भले ही ये वाले भी हो गए थे हम लोग के। तो फेस टू फेस इंटरव्यू एक है। आवाज आ रही है मेरी गर्ल्स? क्लियर नहीं है? बहुत कम आ रही है, क्लियर आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। तुम है फेस टू फेस इंटरव्यूज है जो हम लोग अब जैसे हम लोग जो बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है हमारे बीच में वो ऑनलाइन है। फेस टू फेस मीन्स आप आमने सामने जब बैठते हो। दिस इज अ ट्रेडिशनल इंटरव्यू ऑन द मोस्ट कॉमन टाइप। अगर आप इंटरव्यू के लिए किसी कंपनीज या आप अपने इवन किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप लोगों का फेस टू फेस ही इंटरव्यू होने वाला है। इन दिस इंटरव्यू द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यू मस्ट मीट फेस टू फेस। The main concept of the interview is to build the rapport with the interviewer and मतलब आपका और सामने वाला इंसान जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो रेपो है या जब हम लोग आमने सामने बैठ के बातें करते हैं तो वी गेट मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन एज इफ how he talks or how he looks at you और eye to eye कम्युनिकेशन है या नहीं या ध्यान और कहीं है और आंसरिंग देते हैं बच्चे जिस तरह से। तो उस वो सारी चीजें या नर्वसनेस है किसी टाइप का उस वो भी कैलकुलेशन होता है इंटरव्यू के वक्त अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। जाते बराबर बैठना नहीं है। तो ये सारा कुछ नोटिस या ये सब कुछ देखते हुए वो आपका एक पिक्चर या पोस्टर बनाते हैं कि this candidate is with such and such quality. Then the main concept of the interview is to build the rapport with the interviewer and show how the qualification will benefit this organization. मतलब आपकी क्वालिफिकेशन जितनी कितनी है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प होने वाली है वो एक पता चलता है या वो ग्रैस्प करते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू सेशन। द इंटरव्यूई मीन्स वी जो हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको इंटरव्यूई बोलते हैं एंड इंटरव्यूअर इज द पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू। The interview should maintain the eye contact and respond to all the questions of the interviewer. Okay, you have to answer each and every question which is placed before you. Panel interview is again a panel interview comprised of two or more members. यहाँ two and more members की बोला है. Sometimes the panel is of 10 to 12 or 8 to 10 people are sitting before you, before a single person. So many people are sitting for taking that interview session. It is most common mode of interview when the hiring at the senior level, when जब किसी पोस्ट बहुत सीनियरिटी पोस्ट पे जैसे सपोज हो सकता है कि प्रोफेसर के पोस्ट के लिए मतलब इफ आई एम टॉकिंग ऑन द लेवल ऑफ educational institute
So assistant professor, associate professor, professor, lecturer, then reader. There are so many things moves on with each and every. Hiring at the senior level. So suppose if an educational institute is hiring, or the deemed university, we can say, deemed university is hiring the senior lecturers. So during that interview, I think uh, every department, suppose I'm taking an example, have you heard of Parul University or Lovely University? टीवी में ऐड आती है उस यूनिवर्सिटी की। तो अगर ये यूनिवर्सिटीज में अगर हायर अथॉरिटी के लिए अगर इंटरव्यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि ईच एंड एवरी एचओ स्टार्टिंग फ्रॉम एचओडी और डीन of different faculty, they are sitting, or the director of that institute or the organization might be sitting. So there are many people in panel interview taking the interviewee as they are appointing someone on a very senior level of their own organization. The interviewee should try to connect with each interviewer, and the best way to do this is to read the personality of each interviewer. मतलब as soon as someone is asking the question on your left hand side, reply him. If you are taking your eye on each and every person, those who are listening, sitting and listening to you, you can even turn to their faces, but end your topic or answering to that person, looking at that person only. Give the person who has questioned you more important. In the panel interview, the interviewer tries to break the group management and the group presentation skill of the interviewer. Means how you are handling the whole group of 8 people or a whole group of 4 people sitting before you. Getting my point, girls? Hello? The interviewee should maintain the eye contact with the person asking the question about, but also seek the eye contact with the other members of the panel. Okay, is the person who has asked you the question, it should never be that you are answering looking at someone else. Just you have heard the question, looked at that person and are anywhere else. Don't do that in a panel interview. Okay, getting my voice now? Phone interviews are increasing use in mass hiring. ये मास मतलब बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट अगर हम लोग को करना है, तो हम लोग ये इंटरव्यू फॉलो करते हैं, फोनिक इंटरव्यू. So the interview is conducted entirely over the phone, and this is very effective in eliminating any bias that may arise from the appearance and manner of the candidate. सेल पर्सन का बोल सकती हूँ मैं कि जैसे स्विगी या
और कौन से अमेज़न के कुछ जो होम सर्विस घर तक जो अमेज़न का प्रोडक्ट लेके आते हैं, इस तरह के जो कैंडिडेट्स को हायरिंग रहती है, तो उनको बस यही पूछा जाता है पढ़ना लिखना आता है क्या, खुद की व्हीकल है, फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है कि नहीं, एंड वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो सब नोटिस, मतलब वॉइस क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दोज हायरिंग। ठीक है, फोनिक इंटरव्यू, and sometimes even the phonic interview are taken if the candidate is far away. अब जैसे पेंडेमिक जो पीरियड शुरू है, उस इसमें अगर इंटरव्यू लेने हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जूम पे या स्काइप पे इस पे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं कि फेस टू फेस या ऑनलाइन पीपल रहे लाइव फेस टू फेस, and the facilities is again your digital media। इस मीडिया के वजह से ही हम लोग फोनिक इंटरव्यू या जूम पे इंटरव्यू दे पा रहे हैं अभी। By the phonic interview, the phonic interview is used to narrow the field of the candidate. That is why the candidates should treat the interview with the same seriousness as the phonic interview. The candidate should focus on the convocation and listen to the question carefully before answering. In this interview, voice quality is the key. You can't repeat that, sir सुनाई नहीं दिया, मुझे दोबारा से question पूछिए. So you have to listen carefully the convocation or the question which is being asked before answering. And voice quality in this thing is that your voice plays a key role, can say that. Group interview, the main purpose of this interview is to see how the interviewer interacts with others and how he or she influence others with the knowledge and result। ये group interview में certain points are being placed before the person to know their knowledge, how deeply or how elaborately that person can explain the point or have the knowledge on that thing. Certain sometimes just recent or the current events are being asked. Okay. Why group interview conduct करने का मेन, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा मेरा फोन तो पूरा हाई मोड पे ही है, फुल हाई मोड पे है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। मैम क्लियर है? ओके। यस मैम। Group interview is also the best way to discover any leadership potential among the candidates. If group interview is being placed, a certain topic is being given to the interviewer or the different interviews person candidate, they are just given a single point, keep on discussing on 15 minutes or 20 minutes आपको इस point पे discuss करना है करके आपको एक room में रख देते हैं। Whether you are starting that point in a very calm manner, by the end of the 20 minutes, the things
चेंजेस। और ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि कोई बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का है, तो वो हो सकता है कि वो शायद से एक आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए वो उस पे। तो leading the candidates who are selected from the group interviews are taken up for informal one-to-one interviews। अब यहाँ से जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो कैंडिडेट्स मतलब सिंगल कैंडिडेट सब सिंगल इंटरव्यूज या फेस टू फेस इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, लीडिंग कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू इज द फर्स्ट फिनोमिनन। इवन फॉर निड और निफ्ट में ग्रुप इंटरव्यू पहले होता है, और उसके बाद those persons who have actively taken part in the discussion or keeping something or keeping themselves away from that topic, certain candidates, it depends on the interviewer who is observing you कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्यूरियोसिटी कि ये लड़की या ये लड़का इस पॉइंट पे बोला क्यों नहीं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि पता ही नहीं हो, या हो शायद से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का अगर कुछ रिसेंट एक्टिविटी है या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि इसको पता नहीं है लेकिन इसने मुंह क्यों नहीं खोला करके। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अदरवाइज पीपल जस्ट सिलेक्ट द students or the candidates who have actively taken part in the discussion for the one-to-one interview. Group interview and PR samtics मतलब एक ही दिन वो simultaneous process रहता है, 15 मिनट से हाफ एन आवर के गैप पे दोनों इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, ये रूटीन, ये सारी स्लाइड्स दिखाया था मैंने कल आप लोगों को। This type of interview is rare in the present job scenario. मतलब इसमें क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछे जाते हैं, देन बहुत अजीब तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि सामने वाला सुनने के बाद शायद से मतलब क्यों इंटरव्यू को खींच के एक थप्पड़ मारने की भी इच्छा होती है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं टू क्रिएट दैट सिनेरियो ऑफ और द एनवायरनमेंट ऑफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, या हो सकता है कि रूम ही बहुत अनटाइडी वे से रखा है, चारों तरफ ऐसे बड़ी बड़ी फाइल्स हैं। द पर्सन हु इज एंटर्ड फॉर गिविंग एन इंटरव्यू सब देखने के बाद बहुत अनईजी फील करे। तो ये ज्यादातर यहाँ पे इट इज वेरी अ कॉमन इंटरव्यू मेथड व्हेन सिलेक्टिंग अ सेल्स पर्सन। अगर सेल पर्सन का एक ये है पोजीशन ऑफ मतलब कितने ही कौन सी पोजीशन आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अपने आप का कामनेस और जो मेंटली आप कंट्रोल अपने आप को कर रहे हो, तो वो एक मेन फोकस पॉइंट रहता है इंटरव्यू लेते वक्त कि हाउ कंफर्टेबल ही इज स्टिल, मतलब आपका मेंटल कंडीशन किस तरह का बन रहा है उस फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में, तो वो ज्यादा देखा जाता है। प्रेस इंटरव्यू मीन्स being asked more than one question at a time, being asked further questions without being allowed to giving you an adequate time to respond. Even if you are answering the first question, someone else will be putting the second question. So being questioned in an integrate tone or voice, बहुत rudely कोई पूछ लेता है कि being asked an unrelated bunch of questions, ये भी हो सकता है कि जिस इंटरव्यू या जिस कंपनी के लिए
अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो या आप लोग हेल्थ रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट से हो, but still if someone asks you with something of interior designing or with management thing, I think it will be difficult for you to answer, क्योंकि आप टोटली प्रिपेयर्ड अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों के साथ जाते हो। खत्म हो गया? नहीं। तो यहाँ पे टिप्स ऑन हाउ टू इंटरव्यू। ओके, the work as a reporter can be demanding because of time constraints and the challenges of the interview. As a reporter means टीवी पे रिपोर्टर्स लोगों को लाइव इंटरव्यू लेते हुए देखा है। मिनिस्टर्स लोग पार्लियामेंट के बाहर निकल रहे हैं या सेशन कुछ खत्म हुआ तो किस तरह से वो एक क्या रहता है, मतलब कुछ अगर पर्टिकुलर जैसे अभी कुछ ऐसे चीजें थी जो महाराष्ट्र का मराठा मोबाइल का स्पीकर का और वो कैच का कोई मॉडल नंबर वगैरह लोग क्या पता। कोई कुछ पूछा क्या? हेलो, someone asked something? यहाँ पे जैसे कुछ इवेंट्स अगर जैसे कोर्ट में अभी मराठा आरक्षण के लिए जो प्रोसेस होने वाला था तो न्यूज में बता दिया कि 10:10 पे या 10:30 डिसीजन होने वाला है। तो रिपोर्टर्स का वो मतलब एक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइमिंग, मतलब तुरंत 10:30 के बाद में अगर कुछ कोर्ट के बाहर अगर मंत्री लोग निकल रहे हैं तो that time is one of the most essential and challenging, मतलब इंटरव्यू का वो मेन एक टाइम था। ठीक है, 10:30 निकले तो 4:45 या 10 या 11 o'clock तक का जो आधा घंटा था, तो उस वक्त मतलब अगर वो रिपोर्ट या जो कुछ डिसीजन हुआ है वो अगर कंट्री को पता चलता है विद इन हाफ आवर वाले न्यूज में, तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को जो उत्साह रहता है कि क्या हुआ रिजल्ट। हम लोग वहां पे कोर्ट पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन हम लोग, अगर मैं मराठा हूँ तो मेरे मतलब क्यूरियोसिटी जो है वो एकदम लिमिट्स और हाइट्स पे रहती है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर इवन इलेक्शन जब काउंटिंग होता है तो इलेक्शन काउंटिंग का जो मैदान या हॉल अगर है तो बाहर जिस तरह से लोगों की भीड़ रहती है, देखिए कभी, या कॉलेज के इलेक्शंस में कोई खड़ा है तो उसके बाद जब काउंटिंग या दो ग्रुप, कौन सा ग्रुप जीत रहा है कौन सा नहीं, तो वो पर्टिकुलर एक डिमांडिंग टाइम और एक जो भी न्यूज सामने देता है तो वो रिपोर्टर के लिए एक चैलेंज, मतलब एक इंटरव्यू लेने का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम रहता है रिपोर्ट करने के लिए। तो वो टाइम मिस नहीं करना है, मतलब जैसे कोई बाहर आता है तो उसके सामने खड़ा रहना है उस टाइम पे, या आधे घंटे के बाद आया या 1-1.5 घंटे के बाद है, तो वो जो टाइम जो लाइव सेशन जो होते हैं तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट
या चैलेंजिंग रोल रहता है इंटरव्यूअर के लिए? समझ में आया क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। The interview method can different depending on the interviewee, and it's important to alter your method as needed. यहाँ पे इंटरव्यू मेथड्स कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू. इट डिपेंड्स. अगर अगर कोई सपोज फिल्म सेलिब्रिटी है और उसके साथ अगर करण विद कॉफी विद करण देखा है, वो एक इनफॉर्मल इंटरव्यू है कि फॉर्मल इंटरव्यू है? कौन से टाइप का इंटरव्यू आ जाएगा? वो इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रहेगा ना? यस मैम। तो यहाँ पे वो जैसे अगर फिल्म पर्सनालिटी है तो उनसे वो इंटरव्यू मतलब करण अलग तरीके से बात करेगा. और अगर कोई मिनिस्टर अगर आके बैठता है उसके सामने, या कोई पॉलिटिशियंस के इस पे, या कोई चीफ जस्टिस जजेस के कास्ट मतलब इसमें है, या डॉक्टर्स है अभी के इसमें, तो अगर ये लोग आके बैठते हैं तो वो करण शायद से जो और जिस तरह से फिल्म पर्सनालिटी लोगों से बात करता है वो इनके साथ उस तरह से बात नहीं करेगा. राइट? इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर. मतलब द मेथड. अब करण जिस तरह से बात करता है फिल्म पर्सनालिटी लोगों से, because he knows each one of them, I think from their childhood they have grown up. He is a producer and other person who is sitting before him is a actor or actress. ठीक है, वो एक फ्रेंडशिप हो जाता है, सेम कम्युनिटी पे डिपेंड बीइंग कर, मतलब सेम कम्युनिटी को हेल्ड करता है. बट इफ यू आर सिटिंग बिफोर अ डॉक्टर, ही विल नॉट क्रैक जोक्स. और जिस तरह से वो टॉन्टिंग वे से भी कभी कभी इंटरव्यू से बात करता है, इंटरव्यू से, वो देखा है आपने? नोटिस किया है किस तरह से बातें होती है या इंटरव्यू लेता है वो करण? So these things are more depend on the interviewee. मतलब जो जिसका इंटरव्यू लेना है वो पर्सनालिटी या वो पर्सन किस तरीके से है या किस कम्युनिटी या किस प्रोफेशन से है, तो सामने वाला उस हिसाब से ही इंटरव्यू लेता है उसका. Stay calm and ask flow from questions. However, you do not understand something in an interview. अगर आपको इंटरव्यू लेते वक्त अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर सामने वाले अगर क्वेश्चन जैसे आपके सामने अगर किसी ने क्वेश्चन ये किया तो वो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो स्टे काम. ठीक है? ये नहीं कि तुरंत बोल दो, बाद में फिर से रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अपना इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू पास होने के बाद आपके हाथ में जॉब मिलने वाली है. तो एक मतलब एकदम से कि नहीं समझ में आया अभी क्या, अभी कैसे, तो वो फेस एक्सप्रेशन या वॉइस पे चेंजेस मत लाओ. स्टे काम, let him complete his whole sentence and just repeat. मतलब उसको इतना ही बोलना है कि सर या मैम, just could you repeat once more the question? I didn't get you. ये भी बोल सकते हो. तो हो सकता है कि जो इतना एलॉबरेट करके पूछ रहा था वो थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ ले.
preparation, the most important aspects of an interview is to conducting the background research. ये हो सकता है कि आप जिस हॉस्पिटल्स के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसका कुछ बैकग्राउंड कैसा है, या नर्सिंग के स्टाफ्स में कोई अचीवमेंट्स की है कि नहीं, प्लस पॉइंट्स थोड़ा खोज के जा सकते हो. You cannot understand the full story without the background knowledge. मतलब डॉक्टर्स कैसे कैसे है, डॉक्टर्स कुछ इंटरनेशनली कोई रिप्रेजेंट करता है क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी मतलब जैसे अगर 7 स्टार है तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे लिंक्ड अप है. कुछ चाइल्ड अगर स्पेशलिस्ट है तो हो सकता है कि वो चाइल्ड एसोसिएशन या कुछ इसके साथ इंटरनेशनली या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ उनका ये है, मतलब मेंबर्स है उस इसमें. तो ये सब कुछ मतलब अगर कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो उस अगर इवन कॉलेजेस के लिए भी, तो कॉलेज किस पोजीशन में है या किस लेवल के लोग अब तक काम कर चुके हैं, वो सारी चीजें हम लोग पता करके जाते हैं. बहुत कम लोग जाते हैं इस तरीके से. रिसर्च कैन ऑल्सो हेल्प यू कम अप विद द productive questions. Showing that you know about the subject may also make your source respond more positively to you and your question. So prepare questions to ask and being pen, paper and the tape recorders. बहुत सारे लोग इस ऐसे भी है कि फेस टू फेस अगर इंटरव्यू हो रहा है तो होल इंटरव्यू इज बीइंग टेप्ड. सामने आपके वो टेप रिकॉर्ड रहता है और रिकॉर्डिंग बटन, आप जैसे एंटर होते हो तो रिकॉर्डिंग बटन ऑन करते हुए आप किस तरह से गुड मॉर्निंग बोल रहे हो या तुरंत बैठ गए हो, तो ये सारी चीजें होती है. टेप रिकॉर्ड विथ यू टू द इंटरव्यू. मेक एन अपॉइंटमेंट एंड अराइव्ड ऑन टाइम. मेक एन अपॉइंटमेंट मीन्स वी आर नॉट गोइंग कि मुझे आज यहाँ पे इंटरव्यू देना है. इंटरव्यू कॉल या इंटरव्यू एडवर्टाइजिंग जो आती है उसके अकॉर्डिंगली जॉब अगर इंटरव्यूज है तो अपॉइंटमेंट उनके तरफ से आप बस रेज्यूम फॉरवर्ड करते हो, उनके तरफ से आपको कॉल आता है कि यू आर इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू, है ना. रेज्यूम आप लोग फॉरवर्ड करोगे तभी जाके अगर आपका रेज्यूम सिलेक्टेड है तो ही आप इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू होते हैं. एंड रिमेम्बर टू अराइव ऑन टाइम. ये कुछ स्टेप्स है. गाइडिंग द इंटरव्यू. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड explain what you are doing and for whom. Recently अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ मैं तो मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, वर्किंग विद एन एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, इस तरह से. आस्क द सोर्स नेम एंड द टाइटल एंड मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग मीन्स हम लोग जब रेज्यूम भेजते हैं तो कवर लेटर पे लिखा जाता है कि योर एड और मुझे ये जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, सोर्स कहाँ से था या नेम टाइटल जो भी मतलब मीडिया से. तो स्पेलिंग रेज्यूम में हमेशा करेक्ट रखो. मिस स्पेलिंग अ नेम इज एन ऑफेंस वर्थली फॉर द फ्राइंग एट some publications and may earn more a failed grade if you are a student. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अगर बराबर से नहीं होता है तो वो एक मतलब एक माइनस या नेगेटिव पॉइंट
में गिना जाता है। अगर आपका रिजल्ट या इंटरव्यू का एंड अगर वो लोग देखना चाहे कि 4 अगर इंटरव्यू थे तो उसमें सभी किसी को सिलेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें काउंट होती है कि किसने क्या बोला था, किस तरीके से बोला था। Don't forget, maintain an eye contact, be friendly, avoid yes or no questions. Also to keep and influence a host answer, avoid asking the biased question. कभी जैसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, तो अगर आप वो क्वेश्चन आंसर नहीं देना चाहते तो मत ये बोलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन या समथिंग अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर टॉपिक, या अगर वो टॉपिक पे नहीं आता है बेटर लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ लो मुझे, ये मत ये करो। टेक अ नोट एंड ट्राई टू गेट अ कंप्लीट vote on important subjects. If you did not hear something, politely ask the source to repeat it. ठीक है, कैन यू रिपीट मी द क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग दैट, इस तरीके से एक बोल सकते हो। ऑल्सो कंसिडर द सराउंडिंग ऑफ द इंटरव्यू and the source behavior, as these details can make your writing more. ये जैसे नोट डाउन कर रहे हो, also consider the surroundings of the interview and the source behavior, मतलब किस तरह से वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे रूड और ट्रेस इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो, आप लोगों के लिए ट्रेस इंटरव्यू तो हेल्ड नहीं कर सकते, हेल्ड होता है क्या इस तरह से? मेरे को नहीं लगता है कि एज हेल्थ रिलेटेड अगर कोई है डिपार्टमेंट तो उनको ट्रेस इंटरव्यू है फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो ऑल्सो कंसिडर, इतना तक ही रखती हूँ आज का लेक्चर। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? पहले के स्लाइड्स में आवाज क्लियर नहीं थी मेरी, कुछ रिपीट करना है उसमें से? जितने इंटरव्यूज हुए वो सारे क्लियर है आपको? हेलो, language and adequate. Language means what? Regarding the interview session, what do you mean by the language? Until and unless someone is allowed to sit, one should not sit. जाते बराबर एकदम चेयर लेके बैठने की जो है वो नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज मीन्स व्हाट? इंटरव्यू देते वक्त लैंग्वेज एंड एडिक्वेट्स कैसे रहने चाहिए? एडिक्वेट्स में हम लोग अपना ड्रेस कोड या ड्रेसिंग स्टाइल कंसीडर कर सकते हैं।
What do you mean by language? Hello? मंडे को हम लोग एक सेशन रखते हैं ग्रुप डिस्कशन का। तो आप लोग बताओ कि आप लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हो। आप लोग टॉपिक सजेस्ट करो। अगर मेरे लिए अगर कुछ नया होगा तो मैं उस पर पढ़ाई करती हूँ। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ये करने हैं ग्रुप डिस्कशन में। हेलो गर्ल्स, आप लोगों से बात कर रही हूँ शायद से मैं। यस मैम, कोई भी टॉपिक चलेगा। कौन सा टॉपिक, मतलब आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड लूं कि बाहर का कोई भी ले सकते हैं। मैम बाहर का लीजिए। बाहर का लेना है? यस मैम। ठीक है। रिलेटेड टू सस्टेनेबल फैशन लेना है टॉपिक। हाँ मैम। आप सुना है सस्टेनेबल या ग्रीन फैशन, गो ग्रीन, ऐसा यस कुछ मैम, फैशन सुना रिलेटेड सुना है? जी। और इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? सस्टेनेबल मीन्स व्हाट? ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन फैशन, लॉन्ग लास्टिंग, रिसाइकलिंग, ये सब आप वर्ड्स सुने होंगे अभी रिसेंटली 1.5 years में रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्रीज। तो इस टॉपिक पे लेना है रिसाइकलिंग ऑफ फैशन एंड सस्टेनेबल फैशन। तो इस मैम टॉपिक वो पे फैशन क्या? फैशन प्रोडक्ट्स एंड फैशन सिस्टम है शायद, उसी टॉपिक पे ना। प्रोडक्ट्स एंड फैशन सिस्टम। यस मैम, मतलब वो गो ग्रीन फैशन में आता है ना, सस्टेनेबल फैशन। हाँ, लेकिन सस्टेनेबल फैशन मतलब कैसे ड्यूरेबिलिटी ऑफ क्लोथ, अगर हम लोग कपड़े की जो लाइफ रहती है उसको अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़े पे हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। या कुछ नेचुरल फाइबर्स ऐसे हैं, अभी जैसे आप लोग जीन्स पहनते हो ना, तो जीन्स में जो कॉटन यूज हो रहा है उसके साथ में और एक फाइबर यूज कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स। और वो फाइबर मिलता है शुगर केन, आपका गन्ने का जो जूस पी लेते हो, जो रेसिड्यू बचता है गन्ने का, उस उसका प्रोसेसिंग किया जाता है एज अ फाइबर। उस वो वाले रेशे जो रहते हैं उन रेशों को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि वो आराम से बेंड हो पाए। डैमेज जीन्स बनाने के लिए। अच्छा। और वो बनाना शुगर केन फाइबर्स में एक बहुत अच्छी शाइन भी रहती है। इवन बनाना फाइबर्स मीन्स बनाना जो पेड़ है उसका जो ट्रंक रहता है पेड़ का,
उसके फाइबर्स यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कुछ। अगर आप लोग सस्टेनेबल फाइबर्स अगर नेट पे डालते हो तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी अभी मतलब इन्वेंशन या रिसर्च वर्क पे है। आपके घर में जो दूध फट जाता है, रॉ मिल्क, फटा हुआ दूध, उससे भी कपड़ा बन सकता है। तो ये सब फैशन रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स है इंडस्ट्री में। मैम वही ना, जो मतलब डैमेज जीन्स भी बना सकते हैं या फिर कोई भी टेक्सटाइल और प्रोडक्ट्स हाँ हाँ शायद। हाँ और मैम इको फ्रेंडली हाँ, इको फ्रेंडली फैशन। फाइबर्स या इको फ्रेंडली फैशन भी बोल सकते हो इसमें। मैम वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है ना, बट क्या? मैम इको फैशन क्लॉथ्स जो होते हैं और हाँ, टेक्सटाइल, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए इसका यूज हो रहे हैं। ये जो नेचुरल फाइबर्स है, जैसे कॉटन हो गया, जूट है, देन अभी लेडीज फिंगर, भिंडी, भिंडी अगर सूख जाती है तो उसके जो रेशे बनते हैं, वो थ्रेड्स, तो वो उस थ्रेड में भी बहुत अच्छी शाइन रहती है और वो इतना सॉफ्ट रहता है कि वो कपड़ा जब मतलब भिंडी के रेशों से साड़ी बन चुकी है और वो साड़ी इतनी सॉफ्ट है कि आपके शायद से फिंगर रिंग से वो साड़ी पास हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं उसमें रिलेटेड। तो क्लास में ऑलमोस्ट कितनी गर्ल्स है आपके? मैम वैसे तो अबाउ 50 है। अबाउ 50 है। 23 प्रेजेंट, दो तो उसमें से मैं ही हूँ। 21 प्रेजेंट हो, 20 प्रेजेंट हो बोल सकते हैं। एक सर का लैपटॉप है। ठीक है। और मैम तो जो जारा ब्रांड है, क्या? मैम जो जारा ब्रांड है वो भी मतलब फुल सस्टेनेबल नहीं हाँ बोल हाँ, सकते ना। नहीं नहीं, वो प्रोसेस में है। 2000 उसने मतलब जारा कंपनी ने डिक्लेयर किया है 2023 तक वो फुल्ली सस्टेनेबल फाइबर। सस्टेनेबल हो जाएगा। हाँ मैम। और और जारा ने ये भी डिक्लेयर किया है कि जो फास्ट फैशन है, फास्ट फैशन मीन्स हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो हमारा फैशन जो ट्रेंड है, सपोज अगर अभी दिवाली का अगर फैशन जो भी कुछ आने वाला है न्यू लॉन्चेस, तो उसका प्रोडक्शन अब तक कंप्लीट हो गया होगा। तो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 इयर्स बिफोर उसकी तैयारी करना शुरू करती है। जैसे अभी जो जो फैशन डिजाइनर्स अभी काम कर रहे होंगे वो 2024 के लिए, अपकमिंग ईयर्स के लिए काम करना शुरू किया है उन्होंने। तो जारा जो है कंपनी, वो फास्ट फैशन मतलब विदिन 7 days योर होल स्टॉक इज चेंजिंग। जो भी शोरूम्स है वो विदिन 20 मतलब 7 days आपका चेंजेस होते रहता है। मतलब 7 days में वो उसके इस पे कितना मतलब स्टॉक प्रोडक्ट जो कुछ भी है वो नहीं मिलता है आपको 7 दिन के बाद में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगर इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे तो हम लोग इस पे मंडे को ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कुछ वर्कआउट करना है तो, नेट पे मैम से आप पढ़ना इसका है। असाइनमेंट भी रहेगा क्या कुछ? क्या? मैम इस मॉड्यूल का असाइनमेंट रहेगा क्या? हाँ, लेकिन ये इस मॉड्यूल का असाइनमेंट में शायद से कुछ है जो भी प्रैक्टिस सेशन इन ग्रुप डिस्कशन दिया है। मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन थ्योरी पार्ट है। जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम लोग मंडे को कर लेंगे इस मॉड्यूल का। चलेगा?
फैशन रिलेटेड अगर ओके लेना मैम, है टॉपिक चलेगा। तो कि टाइम चाहिए और पढ़ने के लिए? फॉर और अगेंस्ट का भी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। जैसे फास्ट फैशन यूजफुल तो है, ट्रेंडी है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बैकअप पे अगर लेंगे हम लोग, मतलब जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका, तो उस वजह से हमारे मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वेस्ट क्रिएट करती है वर्ल्ड में। जो भी कुछ कचरा है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट वेस्ट प्रोडक्टिव इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो उसके फॉर और अगेंस्ट में डिस्कशन हो सकता है अगर दो ग्रुप में पूरे स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं तो। तो देखते हैं कैसे, मतलब अगर आप लोगों को टाइम चाहिए तो थोड़ा सा पोस्टपोन, मतलब थर्सडे या नेक्स्ट सैटरडे तक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ ये मॉड्यूल 4 का है क्या मैम? ये मॉड्यूल 4 का है क्या मैम? ये मॉड्यूल 4 है, लास्ट वाला किया मैंने शुरू। ओके मैम, थैंक यू मैम। इंटरव्यू हो गया आपका। अब जो रहेगा थर्ड, जो रेज्यूम वाला पार्ट है, जॉब, ये मैम कैसे हाँ मैम आप नोट्स फॉरवर्ड कर दीजिए ना ग्रुप में। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पे ठीक है। यस मैम, और कुछ फैशन रिलेटेड भी चलेगा, मतलब आइडिया एक। फैशन रिलेटेड वाली आइडिया चाहिए? ठीक है मैम जैसे प्रिपेयर करना हो इफ तो। ठीक है ठीक है, चलेगा। फास्ट फैशन पे करती हूँ, और सस्टेनेबल जो फाइबर्स है, उस मतलब ड्यूरेबल फाइबर्स, उसके ऊपर भी कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो एंड करूँ? यस मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।
हा रुपल वैष्णवी काय विचारायचं आहे बेटा स्टेटस बद्दल जे काही केलंय दाखवा